Hello student, welcome to the Gyan Manjari Vidyapit Mawa online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with the interesting example that is hotspot in image map. But we are going to create one program which contains an image map like a Google map. Right? If you are using a Google map, then आपने वहाँ पर observe किया होगा when you touch on the particular portion, it will zoom that particular portion to you. Right? Basically, Google map contains image of particular area. In that case, there are some of the hotspot available over there, like the temple, like the office, like particular mall. And once you press on this coordinate, one coordinate is given over there. Once you click on it, it will zoom the particular way. वो जो है ना वो आपको particularly zoom कर आपको एक output के तौर पर एक image देता है. So वैसे चीज़ जो है वो Google Map के अंदर आप perform कर सकते हो. Here we are going to do the same thing. Right now I have executed one code that is imagemap.html. उसको मैंने directly यहाँ पर execute किया है. राइट यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है. राइट एक पर्टिकुलर मैप की इमेज है जिस इमेज के अंदर दो रोड है. राइट वन रोड दैट इज श्री M.K. गांधी रोड एंड वन रोड दैट इज श्री नेताजी मार्ग रोड. राइट दिस पर्टिकुलर टू रोड आर देयर. So here we have particularly 5 different location. One that is office, one that is police station, one that is temple, one that is fire brigade, and one that is central mall. Now see the things. When I move my cursor over here, यहाँ पर cursor जब भी मैं move करूँगा तो my cursor becomes normal. मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ पर क्लिक नहीं कर पाऊँगा. ये normal या cursor ही मेरा यहाँ पर blinking रहेगा. But when I move my cursor onto the office, I can see one finger over here. मतलब कि ये portion जो है ना उसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ. राइट यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकता. एक्चुअल में ये क्या है, ये एक पूरी इमेज ही है. गूगल मैप के अंदर जो भी आप देखते हो ना वो एक इमेज ही होती है. वो इमेज के ऊपर आप क्लिक कर पाते. राइट वैसी सेम चीज़ है यहाँ पर. व्हेन आई मूव माई माउस ऑन टू दिस ऑफिस, आई कैन सी वन फिंगर इज ओवर हियर. मतलब ये क्लिकेबल एरिया, ऑफिस वाला जो एरिया है ना वो सारा एरिया क्लिकेबल है. सेम थिंग व्हेन आई मूव माई माउस ओवर हियर, यहाँ पर मैं क्लिक नहीं कर सकता. बट व्हेन आई मूव माई माउस ऑन टू द पुलिस स्टेशन, आई कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. पोर्शन के बाहर जैसे जाऊंगा तो क्लिक का पोर्शन चला जाएगा. सेम थिंग ये जो है ना वो ये सभी चीज, ये दोनों चीज रेक्टेंगल है तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया जो है वो क्लिकेबल है. ये टेम्पल जो है वो राउंड में है. राइट so when I move my mouse over here, I am not able to click, but when I enter the mouse onto this border of the temple, I can click over this particular round shape. Same thing in the fire brigade is a rectangular. ये rectangular है. So यहाँ पर rectangular area में मैं mouse ले जाऊँगा तो I can click. Otherwise I am not able to click. But ये जो central mall है ना वो rectangular भी नहीं है, round भी नहीं है. So ये shape जो है उस shape को हम ड्राइंग टर्म के अंदर कहते हैं पॉलीगॉन. दिस इज द पॉलीगॉन शेप. राइट so when I move my mouse to that border, I am able to click. I am able to click within this part, but I am not able to click over here. मैं यहाँ पर click नहीं कर सकता. Right? But when I enter my mouse over here, I am able to click. Getting? So हमने क्या किया है, ये इमेज के अंदर गूगल मैप पे जैसे हर एक स्पॉट होता है ना वहाँ पर आप क्लिक करके जूम कर सकते हो. Same चीज we are making over here. We have created one image, and that image contains number of hotspot. These all are the hotspot. There are 5 hotspot are available in this image. Now one by one we can click on to the particular image. Suppose I would like to click on the office image, office hotspot. So I can click over here into the office. So you can see over here office is the name given over here, and ये image थोड़ी zoom हो गई. Getting? Again I am going to click on to the back button. Again I would like to click on this police station. Once I click over here, police station zoom, police station heading is available over here. When I click on to the central wall, this image is zoom.
mall is given over here. When I click onto the fire brigade is assumed, fire is name over here, and the last thing is available over here, that is temple. When I click on to the temple is zoom and the name is given at the top of the page. So एक ऐसा व्यू हमें मिल रहा है कि भाई कोई किसी भी एक पोर्शन पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और उस पोर्शन के रिलेवेंट इमेज ही जो है वो जूम होती है. हमें ऐसा दिखता है एक्चुअली कि ये जूम हुआ, बट एक्चुअली ये जूम नहीं होता. गूगल मैप पे भी जब भी आप क्लिक करते हो आपको ऐसा दिखता है कि ये जूम होता है, बट एक्चुअली जूम नहीं होता, बट इमेज जो है ना वो चेंज हो जाती है. अभी एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये जो इमेज आ रही है, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक HTML की फाइल मैंने बनाई है जिसका नाम क्या है, imagmap.html. ये एक फाइल है. जब भी मैं ऑफिस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, office.html. मतलब दूसरी फाइल भी मैंने क्रिएट की होगी, उसका नाम क्या होगा, office.html. राइट. सो office.html में एक फोटो होगा और उस फोटो का जो है उसकी साइज, उसकी हाइट और विड्थ मैंने ज्यादा दी होगी. तो यहाँ पर फाइल जो है वो चेंज हो जाती है. व्हेन यू क्लिक ऑन टू द बैक, अगेन आप imagmap.html में आ जाओगे. व्हेन आई क्लिक ऑन टू द पुलिस स्टेशन, यहाँ पर polisstation.html की फाइल आ जाती है और यहाँ पर क्या होगा, पुलिस स्टेशन की इमेज आएगी, उसका नाम आएगा. अगेन आई वांट टू क्लिक ऑन द बैक, imagmap.html. राइट. सेम थिंग अवेलेबल इन अ सेंट्रल मॉल, mall.html फाइल. राइट. टेम्पल का ऊपर क्लिक करूंगा तो temple.html फाइल. And at last when I click onto the fire brigade, fire.html is the file. So total कितनी फाइल अभी यहाँ पर बनी होगी, एक तो ये मेन फाइल है imagmap.html 1, सेकेंड इज ऑफिस, थर्ड इज पुलिस स्टेशन, फोर्थ इज सेंट्रल मॉल, फिफ्थ इज टेम्पल एंड सिक्स्थ इज फायर ब्रिगेड. सो नंबर ऑफ फाइल्स आई हैव क्रिएटेड दैट इज 6. मैंने टोटल 6 फाइल यहाँ पर बनाई है. और जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पर क्लिक करते हैं तो जूम होता है, बट एक्चुअली कोई अदर इंसान को ऐसा लगता है कि जूम होता है, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको HTML आता है, तो इसे जूम नहीं कहते, इसे जस्ट क्लिक, व्हेन यू क्लिक ऑन टू द इमेज इट विल ओपन अ न्यू फाइल. तो जितने भी हॉटस्पॉट आप लोगों ने क्रिएट किए होंगे उतनी ही फाइल आपको बनानी होगी, और ये जो होगी वो हमारी मेन फाइल होगी. So in this code you will have to understand that we have one master file, that is imagmap.html, and number of hotspots we have created, so individual file for each and every hotspot. So total 6 files we have created over here. हमने 6 फाइल यहाँ पर बनाई है. पहले जो है वो हम ये एक मेन फाइल समझते हैं कि मेन फाइल जो हमने ये बनाई वो कैसी होगी. तो इस imagmap.html वाला कोड जो है वो अभी मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ. So you can see the code over here. This is the image map file. Right? This one is the image map file, imagmap.html. कोड की शुरुआत करते हैं, समझते हैं each and every concept. It is very easy to understand, but यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा आपको बढ़ जाएगा. Now HTML is the starting tag of start the HTML code. Then body tag. Body tag contains p tag, that is paragraph tag, contains click on the location presented on a map to look zoom. Zoom करना है तो आपको मैप के अंदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा. एंड p tag is completed. So इसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक ऑन द लोकेशन प्रेजेंटेड ऑन अ मैप टू लुक जूम. ये एक इंफॉर्मेटिव लाइन है that we have added. Now our actual task is started. img tag contains imgmap.jpg. इमेज टैग का यूज हमने सीखा था. क्या करते हैं इमेज टैग से, वी कैन टेक इमेज एज एन आउटपुट इन अ ब्राउजर. राइट. ब्राउजर कैन कंटेन्स इमेज विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग. इमेज टैग का यूज से आप ब्राउजर के ऊपर आउटपुट देख सकते हो. सो यहाँ पर img टैग के अंदर मैंने एक इमेज ली, उसका नाम क्या है, imgmap.jpg. राइट. imgmap.jpg कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ. दिस वन इज imgmap.jpg. इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी दिस इज अवर इमेज. ये हमारी इमेज होगी.
राइट। सो ऐसी दिखेगी IMG1 जो हमारा मेन इमेज है ना, वो ही है। और वो इमेज आपको कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आउटपुट के ऊपर दिख रही है। दिस इज अवर इमेज। ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है उसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा दी है। वी हैव गिवन विड्थ इक्वल टू 696 पिक्सल एंड हाइट इक्वल टू 593 पिक्सल। सो अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, हाइट थोड़ी कम है। इट्स साइज इज अवेलेबल एज एन आउटपुट ओवर हियर। ओके, तो नेक्स्ट थिंग दैट यूजर मैप, एक नया एट्रीब्यूट आता है IMG टैग के अंदर। यू कैन ऐड अ यूज मैप इज इक्वल टू, यूज मैप की वैल्यू में आपको क्या देना है, एक आईडी देना है, ओनली आईडी। आईडी में कोई भी नाम आप दे सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पर नाम दिया है आईडी में रोड मैप, और आईडी देने से पहले आपको कंपल्सरीली हैश साइन का यूज करना होगा। आईडी की जरूरत क्या पड़ती है, तो आईडी की जरूरत मैं आपको आगे अभी सिखाऊंगा कि व्हाई वी ऐड आईडी ओवर हियर। तो अभी इतना समझो कि यूज मैप इज ए एट्रीब्यूट, हैश इज अ सिंबल दैट यू मस्ट हैव टू यूज इनिशियली व्हाइल यू डिफाइन द आईडी। और यहाँ पर रोड मैप मैंने नाम रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, बट नाम जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, कि जो भी आप टास्क कर रहे हो उसके रिलेवेंट नाम यहाँ पर आ जाए। फाइन। So this is about to add a ID. Use map is an attribute which contains the ID of your image. Then the new tag that we have created over here, that is map. क्योंकि हम Google Map जैसा ही एक टास्क कर रहे हैं, तो map is a tag which is used to create a hotspot within any image. Right? Map tag के मदद से आप एक map जैसा environment create कर सकते हो. Within a image you can create number of hotspot with the help of map tag. एंड मैप टैग कंटेन्स, ये मैप टैग जो है उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या पास किया है, रोड मैप। ये रोड मैप क्या था, दिस इज द आईडी दैट वी हैव क्रिएटेड विद इन दिस IMG टैग। IMG टैग का एक आईडी है। अभी मैप के अंदर नेम में जो नेम आया रोड मैप, वो सेम है इस आईडी से। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी हमने डिफाइन किया, वो आईडी का मेन यूज जो है ना, वो लिंक प्रोवाइड करना है मैप टैग के साथ, राइट। मैप टैग के साथ हमें क्या करना है, लिंक प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस इमेज के अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, नंबर ऑफ हॉटस्पॉट। सो टू क्रिएट अ नंबर ऑफ हॉटस्पॉट, मैप टैग इज यूज्ड, एंड मैप टैग के साथ हमें IMG टैग को लिंक करना है कि मैप टैग जो है वो हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा, बट किस इमेज के अंदर करेगा, जो इमेज IMG टैग के अंदर है उस इमेज के अंदर। सो टू गिव अ लिंक टू IMG टैग एंड मैप टैग, वी मस्ट हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर यूज मैप एट्रीब्यूट एंड दिस आईडी। और ये आईडी जो भी आप यहाँ पर नाम दो, उसका नाम यहाँ पर सेम होना चाहिए, right? This both name should be same. This will be created a link between the IMG tag and map tag. So this is the use of this ID attribute. Okay. Now we have created a map tag. Map tag हमने create कर दिया। उसके बाद अभी हम क्या process start करेंगे? We have to start the hotspot process. अभी हमें hotspot create करना है। So to create hotspot, what we have to define? We have to define area. So एक नई टैग का यूज आता है, मैप टैग के अंदर ही इस टैग का यूज हम कर सकते हैं, जिसका नाम है एरिया टैग। तो दिस इज एरिया टैग। एरिया टैग स्टार्ट होता है, उसके अंदर उसका एट्रीब्यूट है जिसका नाम है शेप। कि कौन सा शेप आप अभी डिफाइन करना चाहते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि हम जो है हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑफिस प्लेस के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं। तो ऑफिस प्लेस जो है वो क्लिकेबल बन जाए। सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर शेप इज इक्वल टू रेक्ट। रेक्ट का मतलब रेक्टेंगल, बराबर। कि रेक्टेंगल शेप जो है ना वो क्लिकेबल बन जाए, इसके ऊपर आप क्लिक कर सको, वैसा शेप बन जाए। क्योंकि ये जो है वो लुक में शेप जो है ये लुक में क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो शेप वी हैव टू डिफाइन इन अ रेक्ट, दैट इज रेक्टेंगल। फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, दैट इज कोड्स। कोड्स का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट्स। ये भी एक एट्रीब्यूट है एरिया टैग का। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, XY कोऑर्डिनेट्स यू विल हैव टू डिफाइन। कि ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो पर्टिकुलरली
एरिया जो है इसका क्लिकेबल बना सकते हो। शेप तो आपने दे दिया, बट रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, बट पर्टिकुलर इसी पोजीशन पर ही ऑफिस आती है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए यू विल हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे दोगे आप? कोऑर्डिनेट ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड टॉप हैंड साइड से शुरू कर राइट हैंड साइड बॉटम हैंड साइड, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दोगे और ये दोनों पॉइंट्स से ये पर्टिकुलर पूरा रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। तो पहला पॉइंट आपको कहां से क्लिकेबल पोर्शन शुरू करना है? तो यहां से। तो इस पोर्शन को आप क्या नाम दे सकते हो? इस पोर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो है वो x एंड y की वैल्यू देनी, राइट? यू विल हैव टू गिव द x वैल्यू एंड यू विल हैव टू गिव द y वैल्यू। So x and y value you will have to define over here. So 46 पहले जो हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, बट पहले जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं वो वैल्यू है x की। दिस 46 दैट मीन्स x। तो यहाँ से शुरू कर लेफ्ट हैंड साइड से कितने पर्टिकुलर पोर्शन आपको लीव करना है? तो 46 पिक्सल मुझे लीव करना है। 46 पिक्सल लीव करने के बाद ही मेरा कोऑर्डिनेट स्टार्ट होना चाहिए क्लिक होने से भी। तो वो अप्रॉक्स स्क्रीन के अंदर यहाँ पर इस पोर्शन में आएगा, यहाँ तक, राइट? यहाँ तक आएगा। फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे यही पोर्शन चाहिए। तो यहाँ मैंने 46 तो दे दिया, अभी y कोऑर्डिनेट्स मुझे देने हैं। तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक होना चाहिए और ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे 37 पिक्सल लीव करना है, राइट? तो 37 पिक्सल लीव करने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर 37 पोर्शन आता है। तो यहाँ पर आपका पहला कोऑर्डिनेट बनता है। तो मेरा क्लिकेबल पोर्शन और हॉटस्पॉट पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पर दूसरा एक कोऑर्डिनेट्स है x2 coordinates. This one is a x1, this one is a y1, this one is a x2 219 So यहाँ से लेकर पिक्सल x वाला यहाँ से शुरू कर यहाँ तक छोड़ना है। तो ये पोर्शन जो है वो यहाँ तक आएगा, उसके बाद नहीं होगा क्लिकेबल। तो 296 अराउंड अवेलेबल ओवर हियर। तो ये हमने लेफ्ट से लेकर राइट तक x2 आइडेंटिफाई कर लिया। अभी टॉप से लेकर बॉटम तक हमें जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट देना है और वो कोऑर्डिनेट है 141। तो 141 जो है वो अप्रॉक्स यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा और 141 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया और पहला कोऑर्डिनेट टॉप लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉटम राइट हैंड साइड हो गया और ये दोनों कोऑर्डिनेट बनाकर ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। यहाँ से लेकर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर और नीचे में यहाँ से लेकर इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो ये पोर्शन हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिलाकर इतना पोर्शन क्या हो गया? क्लिकेबल बन गया। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अभी ये कोऑर्डिनेट्स का यूज कर क्लिकेबल पोर्शन बना है। उसके बाद एक एट्रीब्यूट आ रहा है, उसका नाम है अल्टरनेट। मतलब कि अगर यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद अगर इमेज ना हो आपके पास, या तो कोई फाइल आपने नहीं ली हो, अगर क्लिक नहीं हो पा रहा है तो उसके जगह क्या आएगा? यहाँ पर प्रिंट होकर ऑफिस, इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। बट हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बाद एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने यूज किया है जिसका नाम है href। मतलब कि यहाँ पर क्लिक करें तो कौन सी फाइल ओपन हो? office.html वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट? So after clicking, if we would like to execute this office.html file, तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो office.html फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर ऑफिस वाली इमेज जो है वो प्रिंट हो जाएगी, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट href और उसके अंदर हमने क्या लिखा? office.html। तो office.html का मतलब, href का मतलब जब भी क्लिक करो तो office.html फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है। और office.html फाइल हमने यहाँ पर बना रखी है, दिस वन office.html फाइल, HTML फाइल ही मैंने बनाई है जिसे हम नोटपैड के अंदर देखते हैं। तो उसके अंदर एक नॉर्मल चीज है, हमने हेड टैग लिया नहीं है। हेड टैग इज ऑप्शनल, अगर ना लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया? डायरेक्टली आई हैव स्टार्टेड बॉडी, H1 में मैंने क्या लिया? ऑफिस।
तो आपको यहाँ पर ऑफिस का हेडिंग दिखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट I am taking one image. I have taken one image contains src office.jpg. office.jpg कर मैंने एक इमेज फाइल यहाँ पर ली है, जिसकी हाइट मैंने दी है 500 और विड्थ मैंने दी है 500, राइट। office.jpg हाइट और विड्थ बढ़ा दी है, तो office.jpg आपको यहाँ पर ऐसी बिगर साइज में दिख रही है, और वो भी हमारे फोल्डर के अंदर ऐसी फाइल अवेलेबल है office.jpg। Getting? So in that way you can click onto the particular portion and it will open a new specific area. ये नया एरिया ऐसे आपको ओपन कर देता है। So again we have moved to our original file. ये पहला एट्रीब्यूट हुआ एरिया का। तो एरिया टैग कितनी आएगी, जितने हम हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे उतने आपको एरिया टैग जो है आपको लेने होंगे, राइट। So now the next area tag contains for which particular option? For police station. तो police station में भी सेम आएगा। शेप कौन सा आएगा, यहाँ पर जो है वो शेप है रेक्टेंगुलर। So we have taken over here rect RECT, right? कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x पोजीशन जो है वो बढ़ रही है, y जो है वो स्टेटिक रह रही है, बट x जो है वो थोड़ी बढ़ रही है। तो x पोजीशन जो है वो 407 407, सो एक्स पोर्शन यहाँ पर टॉप ऑफ द साइड जो है वो 407 तक ये बढ़ रहा है। तो यहाँ से लेकर 407 तक ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, फिर टॉप से लेकर बॉटम तक हमें डिफाइन करना होगा वाई कोऑर्डिनेट्स, तो वो कितना होगा 38। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलाकर ये पॉइंट बनता है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है x2 and y2। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 and y2। x2 कितना है 632 और y2 142, सो 632 x2। तो ये थोड़ा बढ़ गया अभी x यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। 632 एंड 142 इज y2। ऊपर से लेकर नीचे तक ये x 642 हुआ, और ये जो है वो 142 ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ यहाँ पर, और ये दोनों मिलाकर ये जो है वो रेक्टेंगुलर, हमने रेक्ट शेप पे दिया है तो ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। और व्हेन यू क्लिक ओवर हियर तो ये police station.html वाली फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो कैसे होगी, तो यहाँ पर हमने दिया ही है href में police station.html, तो police station.html वाली फाइल यहाँ पर क्रिएटेड होगी। police station.html इसे मैं ओपन करवाता हूँ नोटपैड में, तो police station.html जैसे सेम फाइल है ऑफिस की वैसे ही है। यहाँ पर इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी, police station.jpg आ जाएगी, उसकी हाइट एंड विड्थ हमने डिफाइन कर दी है, बट ये फाइल भी अवेलेबल होगी कहाँ पर, यहाँ पर police station.jpg। ओके, सभी फाइल आपको ये सेम डायरेक्टरी में ही सेव करनी है, और ये आपको आउटपुट में police station.jpg मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पर्टिकुलर सेंट्रल मॉल, राइट। अभी सेंट्रल मॉल के बारे में देखते हैं। सेंट्रल मॉल में शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर शेप जो है वो क्या बन रहा है, शेप जो है वो है रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। अभी यहाँ पर कौन सा शेप है, ये पॉलीगोन शेप है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पूरा नहीं है। आप देखो तो ये शेप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर त्रिकोण हो जाता है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर हो जाता है, तो इसे कहते हैं पॉलीगोन शेप। तो एक्चुअली पॉलीगॉन शेप जो है वो, पॉलीगॉन शेप के लिए आपको जो है वो कोऑर्डिनेट्स इसके थोड़े चेंज करने होंगे, कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। सो कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे शुरू होंगे, तो आपको जो है वो हर एक पॉइंट पहले तो देने होंगे। सो पहले ये पॉइंट आता है, तो इस पॉइंट के लिए पहले तो ये x की वैल्यू, ऊपर से लेकर नीचे तक ये y की वैल्यू, दोनों मिलाकर ये एक कोऑर्डिनेट हुआ। सेम थिंग इज अवेलेबल ओवर दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, then this point and at last this point, and ये सभी पॉइंट जो है वो आखिर में क्या हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर पॉलीगॉन जो है वो एक्चुअली बन जाएंगे, सभी पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो पॉलीगॉन की यहाँ पर वैल्यूज जो है वो थोड़ी चेंज होगी। तो पॉलीगॉन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर थोड़ी चेंज होगी। पॉलीगॉन POLY, एरिया के अंदर शेप की उसकी वैल्यू है POLY। POLY इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन। कोऑर्डिनेट्स जो है वो कुछ ऐसे होंगे, 32 से लेकर 301 तक,
32, तो 32 ये x1 ये y1, so this particular coordinates are that. Then x2 and y2 183 301, राइट. अभी ये देखो, ये y1 एंड y1 बोथ आर सेम, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक ये तो कॉमन ही रहेगा, राइट. सो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा x2 y2, राइट. फिर ये आया x3 y3, सो x3 y3 क्या हुआ, 239 352, तो यहाँ से 239 मतलब ये, और यहाँ से ऊपर से 352 मतलब ये. So this is the third point. So x3 y3 completed. Now x4 y4 188 399 मतलब ये वाला, right? ये 188, ये 399. So this particular point, and at last this point becomes x5 y5 32 and 399, x5 and y5. and once you define this point, ये जो है वो पॉलीगॉन शेप के अंदर क्लिकेबल बन जाएगा. और क्लिकेबल बनाने के लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, वो कॉमन है. वो क्या है, HREF के अंदर mol.html कर नई फाइल, और mol.html फाइल जो है वो क्या करेगी, व्हेन यू क्लिक ओवर हियर इट विल ओपन अ mol.html, और mol.html फाइल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है. So I have to open it, and you can see that this is the similar file as we have seen Office and Polystation, right? mol.jpg is the image, और mol.jpg image जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी, mol.jpg. तो ये फोटो ही वहाँ पर जो है वो बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा. अगेन वी आर क्लिक ऑन द बैक. इसकी प्रोसेस सेम है, फायर ब्रिगेड. Right, suppose let's open this particular thing. फायर ब्रिगेड की प्रोसेस जो है वो सेम है. क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमने दे दी है, x1 y1 x2 y2, राइट. x1 y1 is this one, x2 y2 is this one. when you click over here, fire.html फाइल opens. ये कॉमन थिंग ही है, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली इसे अभी कंप्लीट कर रहा हूँ. एंड यहाँ पर जो है वो fire.html फाइल इज अवेलेबल, राइट. ये जो fire.html फाइल है, राइट, दिस वन. इसे अगर आपको नोटपैड में देखना है तो उसका कोड भी सेम ही होगा. मेक अ राइट क्लिक, ओपन विथ, एंड यू कैन सी इन द नोटपैड दिस वन, fire.jpg. getting? But the last thing is new for us, that is temple. टेम्पल में क्लिकेबल पोर्शन कैसा है, राउंड है, और यहाँ पर जो है वो ये है राउंड. तो राउंड पोर्शन क्लिकेबल अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर उसका शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. यू कैन डिफाइन द शेप एज अ सर्कल. जैसा शेप दोगे वैसा क्लिकेबल पोर्शन बनेगा. और उसके बाद सर्कल के अंदर जो जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म है वही है. सर्कल का जो है वो XY कोऑर्डिनेट आपको देने हैं, और लास्ट में जो 70 है वो है रेडियस. तो कितना रेडियस अगर आपको सर्कल को देना है वो, तो XY कोऑर्डिनेट जो है वो 518 एंड 378. तो यहाँ से लेकर 518 एंड यहाँ से लेकर 378, तो ये यहाँ पर जो है वो सेंटर पॉइंट होगा. और यहाँ से इसका रेडियस आपको कितना बढ़ाना है राउंड में, तो वो रेडियस मैंने यहाँ पर क्या दिया, 70 दिया. तो रेडियस जो है वो इसकी बॉर्डर तक हो गया. अगर यहाँ पर मैं 100 दूँ तो रेडियस यहाँ तक राउंड हो जाएगा. बट हमें इमेज के अकॉर्डिंगली ही रेडियस देने. So you can give the radius according to the image, right? And when you click over here, it will open href equal to temple.html. तो temple.html फाइल हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही है. temple.html ओपन विथ नोटपैड. temple.jpg इमेज टैग के अंदर ये ओपन हो रहा है, और temple.jpg कर एक फोटो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. Getting? So this is the code. This is the code of image as a hotspot and Google map type of image, right? It's a map tag.
मेनली हमने इस कोड के अंदर जो है वो क्या क्रिएट किया है, क्लिकेबल पोर्शन सभी इमेज के अंदर जो है वो सेट किए, राइट। वी हैव सेट दिस पर्टिकुलर क्लिकेबल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द हॉटस्पॉट ऑफ योर इमेज। जैसे कि गूगल मैप के अंदर भी आप क्लिक कर सकते हो, वैसे ही टास्क आप यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हो। और इस पोजीशन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे जो है वो इमेज मैप क्रिएट होता है बाय दिस एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। नई चीज हमने इसमें ये सीखी कि हॉटस्पॉट डायरेक्टली इमेज को तो हम क्लिकेबल बना सकते हैं, बट यहाँ पर इमेज ये क्या हुई, ये एक ही इमेज है, तो ये एक ही इमेज के अंदर जो ये पोर्शन, जो ये पार्ट्स है, उसे भी हम क्लिकेबल बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू। ये एग्जाम्पल आपके लिए लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज जो है वो गूगल मैप के अंदर भी होता है। तो दिस इज द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज हॉटस्पॉट इन अ इमेज. So we will meet in the next video lecture with the new points.